Hello everyone, this is Yogesh Parasar. Welcome back on our channel Physical World. So today students will discuss two last applications which remaining in the last lecture of dimensional analysis. So let's start from the fourth application as a research tool to drive a new relation. As a research tool dimensional analysis को यूज किया जाता है to drive a new relation. कोई new relation आपको ड्राइव करना हो तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से एक न्यू रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. चलो एग्जांपल से समझते हैं. ड्राइव ए रिलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल force which depends on mass, velocity and velocity of particle and radius of circular path. Drive a relation of centripetal force which depends on mass, velocity of the particle and radius of the circular path. So how we will drive? देखिए सबसे पहले क्या पूछा उसने, किसका रिलेशन पूछा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय F. डिपेंड्स किस किस पर है? mass of the particle, velocity of the particle and radius of the circular path, that it is represented by capital R. Okay students, now first you have to reduce this proportionality sign. So here F equal to K M. Now you have to choose, यहाँ dimensions लिखने हैं आपको अपने तरफ से, पावर A B R पावर C. ये कांस्टेंट की कोई डायमेंशंस नहीं होती हैं. सो यू हैव टू राइट डाउन फर्स्ट डायमेंशन फॉर्मूलाज ऑफ ऑल दीज क्वांटिटीज. ओके, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फोर्स इज F M L T minus 2. ओके, मास कैपिटल N, पावर A, velocity LT minus 1, power B, radius, actually radius is length, power C. Understand? Now देखो यहां भी L है, यहां भी L है. इन दोनों L को पास कर लीजिए, एग्जैक्ट कर लीजिए. M अकेला है, T भी अकेला है. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. M L T minus 2 इक्वल टू m रेज टू पावर a, यहां से l रेज टू पावर, देखो b तो यहां से और c यहां से, तो l रेज टू पावर हो गया b प्लस c एंड t रेज टू पावर माइनस b. ओके, नाउ फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ homogeneity, dimensions of each term on both sides must be same. On comparing dimensions, dimensions of both sides. Okay, see here, dimensions of M, right side is A and left side is 1. So A equal to 1 इक्वल टू, हमने सबसे पहले मास की डायमेंशंस को कंपेयर किया. मास की डायमेंशंस यहाँ पर क्या है? A और यहाँ पर क्या है? 1. नाउ कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ लेंथ L. Here dimensions are b plus c और here कितना है 1.
तो b plus c equal to 1. On comparing dimensions of t, minus b equal to minus 2, minus b equal to minus 2, minus minus cancelled out, b equal to 2. Okay, now place the value in this equation, that this is the equation first. On placing value of b in equation first, okay, place कर दो. So you will get c equal to minus 1. We have got value of a, b and c equal to 1, b equal to 2 and c equal to minus 1. Now place all these value in this equation, okay, in this equation. That this is the equation A. On placing all values of a, b and c in equation A, okay, so we have got k is dimensionless, okay, तो यहाँ dimensionless आपको नहीं रखना है यहाँ पे इसकी dimensions को. m raised to power a की वैल्यू क्या है 1, v raised to power b equal to 2 and r raised to power c की वैल्यू क्या है -1. So we can write this one as, अगर आप k भी लिखना चाहो तो k लिख लेने कोई प्रॉब्लम नहीं से, f equal to k m v square over r, राइट, बिकॉज ये पावर नेगेटिव थी कहां चली जाएगी नीचे. इफ k equal to 1 then f equal to क्या हो गया यहां से mv square by r. So this is the one more application of dimensional analysis. We can use as a research tool to derive a new relation. एक न्यू रिलेशन ड्राइव करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है. Okay students, got it? Let's see the next application, fifth application. Fifth application is to find out the dimensions of a physical constant or any coefficient. Okay? Fifth application, to find dimensions of a constant or coefficient. Okay students, let's see with the help of an example. If we have f equal to at plus bt square, this is the equation which is given to us. Now question says to you, find out the dimensions of a and b. Find out the dimensions of a and b. Find out the dimensions of a and b. Okay, let's see. So पहला स्टेप आपका यही है, फर्स्ट स्टेप, कि आप ईच टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला इसमें प्लेस करो. इन सबके डायमेंशन फॉर्मूला फंडामेंटल क्वांटिटीज में रखें. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फोर्स यू नो, m l t minus 2. Okay, a is the constant, t small t, okay, b t raised to power 2. Okay, now we can write this one as a t. Okay, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तब ही पूछेगा. यहां पे कहेगा इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ओके, सो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम. प्रत्येक टर्म की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम. सो
from the principle of homogeneity, AT equal to ML T raised to power minus 2. Okay, you have to find out the dimensions of A. So A equal to T उधर चला जाएगा, ML T माइनस 2 पहले से ही यहाँ, ये T नीचे जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, यहां से रह जाएगा डायमेंशन ऑफ A इक्वल T ऊपर जाएगा, पावर नेगेटिव होगी तो T पावर माइनस 2 ऑलरेडी नेगेटिव है, एक पावर नेगेटिव और ऐड होगी ऊपर तो कितनी हो जाएगी, T रेज़ पावर माइनस 3, तो ये हो गया ML T रेज़ टू पावर माइनस 3. Okay students, so dimensions of A are 1 in mass, 1 in length and minus 3 in time. These are the dimensions of A. Now we have to calculate also the dimensions of B. So similarly we can calculate the dimensions of B as B T raised to power minus 2 equal to M and T raised to power minus 2. Now B equal to T वहां से फिर नीचे जाएगा, M L T raised to power minus 2, okay, and T raised to power minus 2. Now see here, B equal to T माइनस पावर है तो ऊपर जाके क्या होगी, प्लस के 2 और माइनस के 2 दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगी, 0. सो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ B is M L T raised to power 0. Now the dimensions of B. So dimensions of B are 1 in mass, 1 in length and 0 in time. Okay students, so with the help of this application we can find out the dimensions of any constant or any coefficient. Okay students, let's see one more example. If C equal to, find out the dimension of 1 over mu 0 epsilon 0 tau. Find out the dimension of 1 over mu 0 epsilon 0. Okay. Of this term. Okay, let's see. आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला किसका है, पहले ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. सो वी हैव अ फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट c square equal to 1 over mu 0 epsilon 0. Okay, c square equal to 1 over mu 0 epsilon 0. बेस फॉर्मूला तो होता है c equal to 1 over root mu 0 epsilon 0. मगर यहाँ ऐसे दिया हुआ तो मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पर हट जाएगा वहां से. ओके, समझ में आ रहा है. मैंने बेस फॉर्मूला क्या था, बेस फॉर्मूला था ये 1 over root mu 0 epsilon 0. दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट. ओके, ऑन स्क्वायर बोथ साइड c स्क्वायर इक्वल टू रूट हट जाएगा वहां से, ये हो गया mu 0 epsilon 0. और दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट. So you know the dimension formula of the C. So from principle of homogeneity, dimensions of 1 over mu 0 epsilon 0 equal to c square. It means dimensions of c square. You know it is the speed of light or velocity. So velocity dimensions क्या होती हैं, lt minus 1, lt minus 1 whole square power 2. So it will be, now see here, on squaring, so 1 over mu 0 epsilon 0 equal to,
L raised to power 2 and also T raised to power minus 2. Now the dimensions of this are 2 in length, okay, and minus 2 in time. मास में कितनी है? मास तो प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट है, तो मास का क्या? 0 इन मास, जो एब्सेंट है। बेसिकली हम एमएलटी की फॉर्मेट में लिखते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते थे, m raised power 0, l raised power 2, t power minus 2, ओके। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं लिखोगे तब भी एक इंप्रेशन है, इट गिव्स द गुड इंप्रेशन। सो एम डायमेंशन मास में क्या है? 0 है, लेंथ में कितनी है? +2, और टाइम में कितनी है? -2। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। नाउ लेट्स डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब हम लिमिटेशंस को स्टडी करेंगे। तो पहले ओरली देखिए लिमिटेशंस क्या है। पहली लिमिटेशंस, अभी जो आपने प्रीवियस एप्लीकेशन एज अ रिसर्च टूल स्टडी किया था, उसमें कांस्टेंट आया था k। उस k के बारे में हमने लेट ही कर दिया था उसको, इफ k इक्वल टू 1। डायरेक्टली हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो फर्स्ट लिमिटेशन डायमेंशनल एनालिसिस की यही है, इट डू नॉट गिव्स एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट। जो कांस्टेंट टर्म आती है उसके बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है डायमेंशनल एनालिसिस। व्हाट इट स्टूडेंट्स? पहला लिमिटेशन समझ में आया आपको। सेकेंड लिमिटेशन, इफ वी आर ड्राइविंग ए रिलेशन इज डिपेंड, कोई रिलेशन आप ड्राइव कर जा रहे हो किसी फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे फोर्स का, एक्सीलरेशन का, किसी और का भी, टाइम पीरियड का, किसी का रिलेशन ड्राइव कर रहे हो, इफ इट डिपेंड्स मोर देन 3 क्वांटिटीज। जैसे प्रीवियस रिलेशन जो ड्राइव किया था उसमें मास था, वेलोसिटी थी और रेडियस थी, 3 क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा था। अगर यही फोर्स 3 क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटीज पर डिपेंड करता तो हम वो नया रिलेशन ड्राइव नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इफ ए क्वांटिटी डिपेंड्स मोर देन 3 क्वांटिटीज देन वी कैन नॉट ड्राइव द रिलेशन। दिस इज द सेकंड लिमिटेशन। समझ में आया आपको? एक तो पहला लिमिटेशन कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। दूसरा, जो रिलेशन आप ड्राइव कर रहे हो वो रिलेशन अगर मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है तब भी आप उस रिलेशन को ड्राइव नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, ये रिलेशन जो आपने ड्राइव किया था वो रिलेशन रादर देन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलावा वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन की फॉर्म में आ रहा है, तो भी आप उस रिलेशन को ड्राइव नहीं कर सकते। 3 चीजें, पहले कांस्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं देता, 3 से ज्यादा क्वांटिटी पे अगर कोई क्वांटिटी डिपेंड करती है तो उस रिलेशन को आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। अगर उस वो क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलावा भी है वो रिलेशन में, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है तब भी आप उस रिलेशन को ड्राइव नहीं कर सकते। 3 समझ में आई आपको? गॉट इट? नेक्स्ट लिमिटेशन, अगर आपको कोई डायमेंशनल फॉर्मूला गिवन है, इफ यू हैव द डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, then we cannot identify the physical quantity. With the help of the dimensional formula, we cannot identify the physical quantity. It means dimensional formula is not unique for a particular or specific quantity. कोई physical quantity दे रखी है उसका यूनिक डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्क के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो वो भी ml2 t-2 है। टॉर्क का लिखेंगे वो भी ml2 t⁻⁻2 है। एनर्जी का नोट करोगे तब भी वही है। इट मींस 3 फिजिकल क्वांटिटीज है, वर्क, एनर्जी, टॉर्क। ऑल दीज फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है तो वी कैन नॉट स्पेसिफाई द फिजिकल क्वांटिटी। आपको अगर डायमेंशनल फॉर्मूला गिवन है तो आप ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटी टॉर्क है, एनर्जी है, वर्क है, क्या है। Whatever the physical quantity we cannot identify with the help of the dimensional formula. And last limitation, okay, जो रिलेशन आप ड्राइव कर रहे थे, अभी पहले जो बात कर रहा था, जो रिलेशन आप ड्राइव कर रहे थे उनमें से कोई 2 क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है।
यानी अगर हम कोई रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं और 3 क्वांटिटीज पर ही डिपेंड करता है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की फॉर्मेट में ही है, ध्यान दो, कोई फॉर्मूला आप ड्राइव करने जा रहे हैं और वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की फॉर्मेट में ही आ रहा है, 3 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब क्या कंडीशन है कि ये जो क्वांटिटी जिन पर डिपेंड कर रहा है उनमें से किन्हीं 2 क्वांटिटीज की डायमेंशनल्स या डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो भी आप उस रिलेशन को ड्राइव नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी ऑन बोर्ड। So let's see the limitations of dimensional analysis. First limitation, it do not provide any information about the constant. जो कांस्टेंट टर्म आता है रिलेशन को ड्राइव करते समय, उस कांस्टेंट के बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। सेकेंड, इफ रिलेशन डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज, अगर कोई रिलेशन मोर देन 3 क्वांटिटीज पर, जैसे रिलेशन आप ड्राइव कर रहे हो फोर्स का MV T, इस तरीके से 4 क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, देन वी कैन नॉट ड्राइव दिस रिलेशन, हम ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि ये 3 से ज्यादा क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, 1 2 3 एंड दिस वन 4। तो इस तरह के रिलेशन जो 4 क्वांटिटीज पर डिपेंड करते हैं उनको भी आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। इफ रिलेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर जो रिलेशन आप ड्राइव कर रहे हो फाइनली रिजल्ट उसका सपोज करो ऐसे आता है AT² प्लस BT, तब ऐसे रिलेशन को भी आप ड्राइव नहीं कर सकते हो, चाहे एडिशन की फॉर्म में हो या सब्ट्रैक्शन की फॉर्मेट में हो, उस रिलेशन को भी आप ड्राइव नहीं कर सकते। आप उन रिलेशंस को ड्राइव कर सकते हो जो 3 क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा हो और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फॉर्मेट में हो। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है तब भी आप उस रिलेशन को ड्राइव नहीं कर सकते हो। ओके, इफ रिलेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन देन वी कैन नॉट ड्राइव द रिलेशन। लेट्स सी द नेक्स्ट। इसी रिलेशन में 3 क्वांटिटीज पर अगर कोई रिलेशन ड्राइव डिपेंड कर रहा है, इफ ए रिलेशन डिपेंड्स ओनली ऑन 3 क्वांटिटीज एंड इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देन इफ द 3 क्वांटिटीज, जो 3 क्वांटिटीज है जिन पर रिलेशन डिपेंड कर रहा है, जो ड्राइव करने जा रहे हो, उनमें से अगर किसी 2 क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तब भी आप उस रिलेशन को ड्राइव नहीं कर सकते। फोर्थ एप्लीकेशन स्टेट्स अबाउट दिस, if the relation which we are driving is depends on the physical quantities have same dimensions, then we cannot drive the relation. जो रिलेशन आप ड्राइव कर रहे हो वो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है कि जिनकी डायमेंशन सेम है, देन वी कैन नॉट ड्राइव द रिलेशन। ओके, इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये श्योर नहीं है कि वो इक्वेशन फॉरएवर करेक्ट है, वो केवल डायमेंशनली करेक्ट है, वैसे करेक्ट नहीं है क्योंकि उसमें कोई कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं है। तो ये मतलब फॉरएवर ट्रू नहीं कि वो करेक्ट हो गई इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट हो सकती है लेकिन फिर भी वो इक्वेशन रॉन्ग है। ओके, डायमेंशनली करेक्ट आप चेक कर सकते। वी कैन नॉट स्पेसिफाई, हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई नहीं कर सकते उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से। कोई डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको दिया हुआ है तो उससे आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो। इट मींस कहीं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ हो और आपसे कहा जाए व्हाट इज द क्वांटिटी, व्हाट इज दिस फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हिच इज द डायमेंशनल क्वांटिटी ऑफ दिस डायमेंशनल फॉर्मूला, ये कौन सी डायमेंशनल क्वांटिटीज का फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड 2 एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब हमारा डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिगार्डिंग द इक्वेशन ड्राइविंग, रिगार्डिंग द कांस्टेंट ऑफ डायमेंशंस, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है डायमेंशनल एनालिसिस रिगार्डिंग, सो सेंड मी इन द कमेंट बॉक्स। वी विल डिस्कस in the next lecture significant figures. So enjoy the lecture, like the video, share the video, subscribe the channel. All the best.